right from Sultan Razia to a play called a folk play called Jagran from Marathi, and from lesbian character to 80 years old character. So that was my range on stage. Because I think theatre में plays ऐसे ही लिखे जाते हैं with a lot of important characters. अगर किसी की जरूरत नहीं है तो कैरेक्टर भी निकाली जाती है. Hello, this is Rohini Hattangadi and you are watching Bollywood Hungama. Rohini ji, welcome on Bollywood Hungama. Thank you. Thank you. And it's an absolute privilege to have you with us today. And such a wonderful and checkered career, ma'am. How do you look back at your journey? Sometimes I myself don't believe I'm here for nearly more than 40 years. Well, all my childhood or so, I had the liking for arts. I mean, I used to dance, I used to act in my childhood also. And I started my career with, not exactly career, but I started acting on the stage from my children's plays when I was in school. So since that time, I'm on stage off and on, and then I took it up as a career. In '76, my first commercial performance I did of a Marathi play. So, and before that, I went to National School of Drama for 3 years. So sometimes I myself don't believe that I'm here for more than 40 years. Definitely, ma'am. आपने बहुत सी आपने कमाल की फिल्मों में आपने काम किया है, एंड मेरे जो साथ में इस वक्त एक मेरे कलीग हैं, तो उनका सुबह मेरे पास मैसेज आया कि प्लीज चालबाज और अग्निपथ के बारे में जरूर उनसे बात करिएगा, बिकॉज़ कमाल का उनका परफॉर्मेंस है. सो मैम विल कम टू दैट, बट जो आपकी जो मोहब्बत है वो आपका फर्स्ट लव आपका थिएटर है. जी जी. You absolutely, because the variety of roles that you have been able to portray in theater has been phenomenal. Japanese भी आपने theater किया है, आपने Indian right from Sultan Razia to a play called a folk play called Jagran from Marathi, and from lesbian character to 80 years old character. So that was my range on stage. And when I start thinking of it, ज़्यादातर मुझे याद आते हैं मेरे प्लेज ही आते हैं. मुझे फिल्में बहुत ज़्यादा याद नहीं आती. Barring 1 or 2 films like सारांश और अर्थ और अग्निपथ, बहुत ज़्यादा फिल्में याद भी नहीं आती है मुझे. बट प्लेस कहो तो 1 2 3 4 में गिनते जाती हूँ. इतने प्लेस है. Close to my heart. Acting on stage is close to my heart. Right, because जो variety आपने जो portray किया theater में, I think that is phenomenal, because आपने खुद भी आपने admit किया है कि सिनेमा में बहुत हद तक आपको stereotype कर दिया गया है in mother's role, which you made it memorable, all of them, but still that was that's what you were slotted in. और फिर एक हमारा एक बहुत ही strange सी एक ये भी situation होती है कि that you won awards in best supporting actor category, which are phenomenal. You won a BAFTA as well, but still theater में या stage पे वो demarcations नहीं है कि कौन supporting actor है, कौन main lead है. Not really. But because I think theater में plays ऐसे ही लिखे जाते हैं with a lot of important characters. अगर किसी की जरूरत नहीं है तो character भी निकाली जाती है. I mean, you can have a play with 4 characters, 2 characters, even one actor play भी हो जाते हैं. So ऐसे slotting नहीं होता है, because I think the themes, the subjects which are chosen for theater are not stereotypes. So मुझे लगता है वो उस slot में ऐसे मैं सिर्फ मदर के ही स्लॉट में हूँ, मैं सिस्टर के ही स्लॉट में हूँ, ऐसे कभी नहीं होता है.
because each and every character on stage is important and it's not stereotype. मैम षड्यंत्र जो एक गुजराती वेब सीरीज है, that is finding your presence, and it is a privilege for them. I'm sure that you are part of that. एक जनरली एक नोशन मैम ये हो रहा है कि जो वेब शोज हैं सिंस उसमें सिंस इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट, तो सब तरीके के जो किरदार हैं उनको स्केच आउट करने में, उनको अच्छे तरीके से वेल एज्ड आउट उनके जो कैरेक्टराइजेशन है वो हो रहा है, and that is really bringing the best out of actors. Do you think that as well, ma'am? Yeah, because I mean play में बहुत intense होता है, that's what I feel, क्योंकि 3 घंटे में आपको हर किरदार को आपको खोलना पड़ता है, हर किरदार को आपको प्रेजेंट करना पड़ता है. वेब सीरीज में इवन सिनेमा हैज गॉट ओनली 3 hours रन, सो वहां पे मूव होते रहना, स्टोरी का मूव होते रहना, ये ज्यादातर उस पे ध्यान दिया जाता है, प्लस द कैरेक्टर्स. बट वेब सीरीज में या टेलीविजन सीरियल्स में थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, उसका जो दायरा होता है वो थोड़ा सा खुला होता है, यानी कैरेक्टर खोल के आपके सामने रख सकते हैं, अलग अलग पहलू जो कैरेक्टर्स के होते हैं वो आपके सामने रख सकते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम. ऐसे भी होता है कि वो कैरेक्टर चली जा रही हैं. समटाइम्स इन टेलीविजन सीरियल्स यू कैन फाइंड दैट suddenly the story is moved and went some other way also. जहां से स्टार्ट हुई है वहां से स्टार्ट ना होके एक ब्रांच निकलती है और वहां पे शुरू हो जाती, वो ब्रांच बढ़ती रहती है और जो पहली वाली स्टोरी होती है वो आपके कहीं बाजू में ही रह जाती है. ये भी हो सकता है. I mean, ये दोनों फायदे हैं और ये नुकसान भी है इतना स्प्रेड होके आपको स्टोरी बताने का. Right. तो ये थोड़ा सा धोखा उसमें होता है कि शायद अच्छी तरह से शुरू हो जाए एक आध सीरियल और फिर पता नहीं चलता है उसका क्या करेंगे और फिर कहीं और ही चली जाती है, एंड देन पीपल लूज इंटरेस्ट. इसलिए मेरे ख्याल में वेब सीरीज जो छोटी छोटी होती है, आई मीन वेब सीरीज आर नॉट लाइक साल 2 साल चल रही है. वेब सीरीज का एक सीजन्स होते हैं, 15 एपिसोड, 8 एपिसोड, ऐसे एक सीजन करके वो टाइटली निटअप होता है. मेरे ख्याल में उसके लिए वेब सीरीज में करने में शायद मजा आएगा, क्योंकि टेलीविजन और सीरियल्स में मैंने देखा है बहुत ही कम सीरियल्स. मैंने एक मराठी सीरियल की है वो जो हमारी 13 साल चली थी, लेकिन उसमें किसी ने, यानी इवन channel didn't interfere in it, in the story or anything, and our director had a free hand, और वो इतनी अच्छी कि अभी तक लोग वो याद करते हैं सीरियल. Absolutely. और उसने कभी अपना मूल नहीं छोड़ा था. जो जिस फैमिली में जो सीरियल चल रही थी उसी फैमिली में सीरियल वो बंद हो गई 13 साल के बाद, लेकिन अगर 4 साल चल रही हैं तो आगे पता नहीं उनको क्या करें ये पता नहीं चलता है, और फिर वो इंटरेस्ट चला जाता है और वो सीरियल बंद करनी पड़ती है. मैम जैसे आपने मराठी सीरियल की आपने जिक्र किया, मराठी सिनेमा में भी आपने आई थिंक बहुत अच्छे आपने किरदार निभाए हैं. रिसेंट टाइम में आपने एक मेल कैरेक्टर का रोल आपने निभाया है, which was I think something that incredible for almost everyone. So क्या आपको ऐसा लगता है, अभी आप षड्यंत्र गुजराती वेब शो है, क्या आपको लगता है कि जो अलग जुबानें हैं हिंदी के अलावा, जो फिल्मों के अलावा जो आपने काम किया है, वहां पर आपको ज्यादा आपको मौके मिले हैं टू शोकेस योर टैलेंट? ऐसा ही नहीं कहूंगी मैं. खैर गुजराती में मैं 82 से 83 से मैं गुजराती थिएटर में काम कर रही हूँ, तो वहाँ पे अलग अलग किस्म के मैंने रोल्स किए ही हैं. मैंने
सारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस यानी कन्नड़ा और मलयालम, चारों चारों लैंग्वेजेस में मैंने काम किया है। उसमें उसमें भी थोड़ा सा बाद बाद में थोड़ा सा एक दादी का ही कैरेक्टर मुझे दिया जा रहा था, लेकिन मलयालम फिल्म में मैंने एक इम्पोर्टेंट और मेन कैरेक्टर की है, औरत, आई मीन एजेड, नॉट एजेड औरत, लेकिन जिसकी शादी के लायक बेटी है, ऐसी औरत, एंड दैट वाज माय मेन कैरेक्टर। उससे पहले भी कन्नड़ा में मैंने जब किया था वो भी ऐसी मेरे ही एज की कैरेक्टर, उसमें मुझे कहीं ओल्ड एज की कैरेक्टर नहीं की है मैंने। तो साथ इतने इतने सारे कैरेक्टर्स के बाद वो वैरायटी तो मिली है, लेकिन तेलुगु में मैंने ज्यादातर फिल्में की हैं, लेकिन उसमें भी मुझे थोड़ी थोड़ी वैरायटी करने मिली है। लेकिन लेटली मैं दादी की ही कैरेक्टर्स कर रही हूँ तमिल में। लेकिन हिंदी के क्या कहते हैं, हिंदी के मुकाबले में मुझे काफी अलग अलग कैरेक्टर्स करने मिली है और जी लैंग्वेजेस में। जी क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारे गुजराती के भी प्लेस हुए, उसमें मुझे बा करके जो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बा ही रही हूँ मैं तीनों प्लेस में। जैसे बा तने हूँ क्या रखूं, मम्मी मारी माइंड ब्लोइंग और नौकरानी है, तीनों उसमें मुझे बा बना के रखा है उन्होंने। लेकिन मराठी में मैंने बहुत कम, आई मीन सॉरी टू से, बट मराठी बीइंग माय मदर टंग, मैंने मराठी में गिनी चुनी फिल्में की, मैंने ज्यादा फिल्में की नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जो तैयार फिल्म है उसमें मैं अपनी खुद का एज कर रही हूँ। फिर अभी एक फिल्म हमने शूट की है, वो अभी आनी है, उसमें भी अपनी एज का कर रही हूँ मैं। तो अदर लैंग्वेजेस में थोड़ा सा मैंने जो भी किया है, नाउ दैट यू टुक द पॉइंट आउट, मैंने अदर लैंग्वेजेस में ज्यादातर अलग अलग रोल्स किए हैं, जी ऐसा जी जी, मुझे मैं लगता वही कहना चाह रहा था। मैम आपने मेंशन किया कि मराठी में आपने काम किया, लेकिन आज एक परसेप्शन ये है कि इंडिया में जो लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस में, सो कॉल्ड रीजनल लैंग्वेजेस, उसमें मलयालम एंड मराठी, दे आर कमिंग अप विद सम ऑफ द बेस्ट वर्क्स इन टर्म्स ऑफ experimenting है। with stories and ideas, and even Yeah. technically I think that they're extremely sound. सो क्या हम देख सकते हैं कि आप आगे आने वाले टाइम में मराठी सिनेमा में और एक्सप्लोर करेंगी, बिकॉज बहुत सी कहानियां हैं, मराठी राइटर्स बहुत कमाल के राइटर्स हैं, जी, जी, which hasn't been explored that much. या हाँ, आई मीन मुझे रोल्स में से मेरी एज के तो बहुत कम ही आ रहे हैं आजकल। लेकिन अभी जो फिलहाल जो मैं शूटिंग की मैंने अनंत महादेवन की फिल्म में, वो मराठी फिल्म कर रहा है, और उसमें हमारे मराठी के बहुत बड़े कलाकार वो काम कर रहे हैं, दिलीप प्रभावलकर, वहाँ जिन्होंने गांधी जी मुन्नाभाई बट गांधी जी का रोल किया था। लगे वो रायमन्ना और मैं, हम दो ही कैरेक्टर्स उसमें मेन है, बाकी सब आते जाते रहते हैं। बट दैट फिल्म आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि लेकिन वो कमर्शियल मराठी नहीं हुई, इट्स नॉट अ कमर्शियल मराठी, क्योंकि उसका सब्जेक्ट ही इतना अलग है, वो इच्छा मरण का सब्जेक्ट है। तो ये तो कमर्शियल हो नहीं सकता है, क्योंकि जी दिस इज नॉट एवरीबॉडीज आई मीन लाइकिंग का सब्जेक्ट नहीं है। यूथनेसिया हाँ, लेकिन नहीं, यूथनेसिया इज दया मरण, इच्छा मरण इज समथिंग डिफरेंट। दया मरण में क्या होता है, एक पेशेंट है जो आई मीन लाइफ सपोर्ट पे है, और उसकी तकलीफें हमको देखी नहीं जाती हैं, एंड देन वी वांट हिम टू यू नो एंड पीसफुली गो अवे। इच्छा मरण ये है कि जो मैं चाहता हूं कि अब मेरी अ, अ, अब मेरा काम खत्म हो गया है इस दुनिया में, और अगर मैं अब जी रहा हूं तो काहे के लिए जी रहा हूं, ये एक। दूसरा,
मैं आई एम स्पेंडिंग, आई एम वेस्टिंग नेशंस मनी, आई एम वेस्टिंग मनी यहाँ रह के, भूमि पे भार हो रहा हूँ, क्योंकि अब मैं रिटायर हूँ। अब मैं जब मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूँ, तब मुझे कहीं बीमार पड़े हुए मुझे मरना नहीं है। क्यों उसकी राह क्यों देखूं? सही बात, क्या और इसलिए मैं, अभी मेरा काम यहाँ का हो गया है, अब मैं जाना चाहता हूँ, सो प्लीज मुझे जाने दीजिए। ऐसा ऐसा एक है वो, उसको हम इच्छा मरण कहेंगे। राइट और राइट। यूथनेशिया इज दया मरण। और ये दो अलग अलग चीजें हैं, जैसा मैं मान रही हूँ। ये बहुत अलग चीजें हैं कि मैं सोचे समझे मैं मरना चाहती हूँ। मैं कहीं खाट पे पड़ के अभी भगवान उठा ले मुझे, ऐसे नहीं चाहिए मुझे। षड्यंत्र के बारे में अगर कुछ आप प्लीज बताना चाहें कि कैसा एक्सपीरियंस था आपका षड्यंत्र में काम करने का? षड्यंत्र में एक्चुअली बाबुल भावसार जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मैंने बहुत सारे काम किए हैं, प्लेस किए हैं, बहुत सालों से उनको जानती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि रणि जी, आपको मैं लिख रहा हूँ और आपको करना है। मैंने कहा आप लिख रहे हैं तो अच्छा ही देंगे मुझे रोल कोई फालतू रोल नहीं देंगे तो मैं करूंगी ऐसा। और पहली वेब सीरीज, गुजराती में पहली वेब सीरीज है। मैंने कहा दैट इज इंटरेस्टिंग। मैं मराठी वो करती हूँ, गुजराती में प्लेस किए हैं मैंने, दैट्स नॉट माय मदर टंग। बट मैंने कहा एक सिर्फ ध्यान में रखना, मैं बड़े 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 सेंटेंसेस और ऐसे मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि नाटक की बात अलग है और वेब सीरीज की बात अलग है, शूटिंग की बात अलग है। क्योंकि नाटक में तो हम 1 महीना लगा देते हैं, एक नाटक वो करने में, रिहर्सल्स में बाय हार्ट भी हो जाता है, सो आई डोंट हैव टेंशन। मैंने कहा ये वेब सीरीज में या शूटिंग में ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मेरा बाय हार्ट नहीं हो रहा है, ऐसे अच्छे अच्छे सेंटेंसेस दे दीजिए मुझे, बहुत आसान आसान ऐसे सेंटेंसेस। एनीवे, द फन्स अपार्ट, फिर उर्विश जी का मैंने काचिंदो देखा था, तो मैंने कहा वो डायरेक्टर है तो मजा आएगा। देन अपरा बेन, अपरा एंड वंदना, उनके साथ तो मैंने काम नहीं किया था। दीपक जी के साथ एक प्ले किया था मैंने इससे पहले। लेकिन सब पहचान वाले लोग थे, अच्छे अच्छे लोग थे। मैंने कहा मजा आएगा। जयपुर में शूटिंग है कहा, तो मैंने कहा और भी मजा आएगा क्योंकि सब लोग इकट्ठा होंगे। और बहुत मजा आया था वहां पे, एक हवेली जैसा, हवेली वो था, वहां पे हमने शूटिंग की विद, और पैंडेमिक में चल रही थी, हमें जी कोरोना के दौरान ही चल रही थी। तो पूरी की पूरी खबरदारी के साथ हम शूट कर रहे थे। जो यंगर कास्ट थी वो मैं जानती नहीं थी किसी को, लेकिन जब मैं वहां पे जाके हमारी दोस्ती हुई तो वी हैड अ नाइस टाइम। एक्चुअली उनके साथ भी बहुत मजा आया। यानी सिर्फ हम सेट पे ही नहीं, लेकिन ऐसे भी मजा करते थे। सो इट वाज अ फन शूट। एंड हमेशा ये होता था कि अभी जो सस्पेंस है वो आखिर तक, जो सस्पेंस रखना है 8th एपिसोड तक, तो उससे पहले हमको तो वो सस्पेंस बता दो क्या है क्या नहीं है, ये कौन करता है, क्या करता है, क्यों करता है, ये मुझे पता है नहीं पता है। हर सीन में ये हमारी डिस्कशन होती थी। और ये पता, ये कब हुआ, ये मुझे नहीं पता है क्या? अच्छा, तो फिर मेरा उसका नजरिया ऐसे होगा। अच्छा, ये मुझे पता है तो मैं इस तरह से बोलूंगी, ऐसे करके, क्योंकि सस्पेंस में वो होता है ना कि कहीं पे छूट ना जाए कुछ। तो ये सारी बातें होती थी। और एक थोड़ी सी चैलेंजिंग ही बात थी कि पूरे वेब पूरी सीरीज में मैं व्हील चेयर पे हूँ, मुझे चलना नहीं आता है, ऐसा है। और वो व्हील चेयर मुझे, आई मीन नॉर्मल जो ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, जो पहिए को ही हम वो करते हैं, वैसी नहीं थी, वो बैटरी ऑपरेटेड थी।
तो वो छोटी सी एक जॉयस्टिक हुआ करती थी हैंडल पे, और मैं वो मुझे मैनिपुलेट करते करते डायलॉग्स बोलना था। तो इट वाज फर्स्ट 2 days, इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी मैं डायलॉग बोलूं या वो मैन्यूवर करूं, लेकिन अल्टीमेटली आई गॉट हैंग ऑफ इट थोड़ा सा, क्योंकि जॉयस्टिक थोड़ी सी यहाँ गई तो इस तरफ जाती थी, थोड़ी सी यहाँ गई तो इस तरफ जाती थी। तो मुझे स्ट्रेट जाना था, अरे ये घूम रही है करके ऐसे होता था। तो 4-5 रिहर्सल्स के बाद फिर वो हो जाता था। सो ये सारी दीज आर द थिंग्स वी रियली एंजॉयड। और फिर कभी कभी ये होता था कि गुजराती सेंटेंसेस में आई कुडंट माउथ टू लॉन्ग एंड टू इंट्रिकेट गुजराती सेंटेंसेस, तो फिर उसको तोड़ तोड़ के, बाबुल भाई इसको तोड़ के दे दो मुझे, ऐसे करके मैं वो करती थी। सो इट वाज रियली फन, एंड सस्पेंस आखिर तक बरकरार रहा है, एंड वी आर गेटिंग good reviews of the series. मैम, रिचर्ड एटनबरो साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में apparently ये मेंशन किया था that there were auditions in London for the final roles for Gandhi and Kasturba Gandhi. And there was you and Ben Kingsley, Nasiruddin Shah was there, Smita Patil was there. Ji. And apparently he wrote that Smita Patil was way too beautiful. That is why the role didn't. What was your response when you read that? नहीं, जब मैं वहां गई थी, वो मुझे मालूम था वहां पे स्मिता आने वाली है, मुझे मालूम था वहां भक्ति जी होने वाली है, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं अपना काम करूंगी और वापस आऊंगी। और जब उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, शी वाज टू ब्यूटीफुल, which I think he wanted बार टू लुक प्रोविंशियल, वो चाहिए थी, वो ब्यूटी शायद बीच में आती स्मिता, एंड स्मिता वाज टू ब्यूटीफुल, आई मीन शी वाज रियली स्टनिंगली ब्यूटीफुल। और मुझे लगा फॉर वंस फॉर वंस आई एम चोजन फॉर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, ऐसे मुझे लगा था उस वक्त। बट स्मिता वाज माय वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इससे पहले हमने 2-3 फिल्में की हैं, एंड शी वाज वेरी नाइस गर्ल, शी वाज डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसको भी व्हेन शी मेट मी देयर, एक्चुअली उसने धीरे से कहा था, रोहिणी आई थिंक तुम चूज होगी, ऐसे धीरे से एक बार मुझे कहा था। So she was so magnanimous. She was gorgeous. She was a beautiful human being. और उसने जब रिचर्ड अटेनबरा ने सब लोगों को खत लिखे, I mean he wanted it to be officially told to all people who were not selected. तो तब स्मिता ने, बाद में मुझे रिचर्ड ने कहा था, स्मिता ने उनको खत लिखा कि थैंक यू वेरी मच, बट रोहिणी इज अ वेरी गुड चॉइस, एंड आई, यानी ऐसे इस उसमें लिखा था कि आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड कि रोहिणी सिलेक्ट हुई है, एंड शी इज अ गुड एक्टर एंड शी विल डू वंडरफुल जॉब। ऐसे स्मिता ने वापस रिचर्ड को खत लिखा था। So, Ma'am, today when we hear about BAFTAs and when BAFTAs are happening, it's a huge event, not only all across the world, and people within the film industry as well, they consider it as a huge deal. You went ahead and won the laurel for country as a best supporting actress at BAFTAs. How did it change things for you? What did it mean to you when you came to know that you actually won it? I was happy, definitely, but things never changed. Changed. ऐसे कहते हैं कि एक ऑस्कर मिला और एक वो मिला तो इमिजिएटली, यहाँ तो किसी को वो नहीं था ऑस्कर का, और
ऑस्कर मिला होता तो अलग बात थी, लेकिन BAFTA किसी को मालूम भी नहीं था, बिकॉज BAFTA इज रियली अ क्रिटिक्स अवार्ड, ऐसा सोचते हैं। ऑस्कर इज अ पॉपुलर अवार्ड, लेकिन यहाँ इंडिया में कोई चेंज होने का चांस ही नहीं था। सिर्फ उसके बाद एक बार मुझे याद है, हीट एंड डस्ट के लिए मुझे जेम्स आइवरी ने कांटेक्ट किया था, देन आई वेंट टू मीट हिम, और and he kept on staring at me. He said, who did older Ba? I said, me. It was me. And you did makeup? Yes. Even, I mean, throughout the film, I was doing Ba. So he said, nee, I didn't know that you are so young, and I wanted actor who is 55, and I don't want to use makeup and all. So sorry that I said, I'm sorry, I can't. That time I was 27, and to portray 55 years old person, I said, makeup के अलावा कुछ नहीं हो सकता है. Then, so I didn't do that role. That role was done by Deena Pathak at that time. So, well, that was it. वो एक ही. उसके बाद मैं हिंदी फिल्में ही करती रही. उसके बाद हॉलीवुड का, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का कुछ वो भी नहीं था. और आज के जमाने जैसा इतना एक्सपोजर भी नहीं था उस वक्त. यू हैड टू हैव, वहाँ पे काफी स्ट्रगल करना पड़ता था इंडियन एक्टर्स को. तो वहाँ पे थे लोग वही काम कर रहे थे, जैसे रोशन सेठ. He was stationed in England and he was doing theater and films there. और हिंदी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा. उनको तो बात यानी ओल्डर बाप मालूम थी, इसलिए ओल्डर रोल्स मुझे देते रहे. And they forgot that once Ba was young, and even Gandhi film has younger Ba. Ma'am, as I mentioned in the beginning, so you've had some really likable performances in the commercial films. As I mentioned, Chalbaz and Agnipath. People remember your scenes Yes. and they talk about it. I'm sure that it must be mentioned to you all the time as well. How special are these two performances for you? Ba is special because I got to portray a person from 27 to 74. And that was the first, I think, and I got noticed because of Gandhi. But afterwards, Saransh is one of my favorites. And even Arth is one of my favorites. लेकिन हर कैरेक्टर में I played it different all the time. क्योंकि बा पार्वती प्रधान जैसे नहीं है. Though she is the same age maybe, but वो पार्वती प्रधान जैसी नहीं है. So I wanted to go near the spirit of the character rather than playing an old woman, also an old woman. So I think Saransh is close to my heart more. Rather sometimes more than Ba. Sorry to say, but both are good. But Saransh was slightly. Rohini ji, finally, last question to you. Yeah. You've also expressed your opinion about the recent amendments in the Cinematograph Act. Yeah. And Yes. you've voiced your opinion. Why is it important for you to See, have? I don't understand recalling a film for reviewing. एक तो वो सेंसर हो चुकी है, और अगर सेंसर बोर्ड, अगर आप देखें तो सेंसर बोर्ड में जो लोग फिल्में देख के उस पे कमेंट करते हैं और उसको पास करते हैं, उसमें आपकी सोसाइटी से में हर स्ट्राटा के लोग होते हैं, राइट फ्रॉम हाउसवाइफ्स, रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं.
फिल्म उसमें से चुन के या उससे लोगों को एट रैंडम बुलाते हैं और वो व्यूइंग करते हैं। दूसरा गाइडलाइन होती है। तो अब ये सब तोड़कर आप सेंट्रलाइज क्यों करना चाहते हैं, एक ही किसी उसके हाथ में क्यों देना चाहते हैं, और वो भी रिकॉलिंग क्यों? एक बार वो फिल्म आ चुकी है, एक बार वो सबने देखी है, अब उसमें ऑब्जेक्शनेबल क्या होगा, रिव्यू क्या करना है उसमें? यानी किसी अम, 2 बीघा जमीन को आप फिर रिव्यू करेंगे क्योंकि वो डाउन ट्रॉडन का है, हमारे हमारे हमको ठेस पहुंची है, इसलिए हम आप रिव्यू करेंगे। इतने साल पुरानी फिल्म आप रिव्यू करेंगे? यू नो, दैट इज नॉट दिस थिंग। और एक जो जो हम कहते हैं कि समाज का आईना होता है, थिएटर फिल्म समाज का आईना होता है, और अगर आप खामियां नहीं चाहते हैं, आप में जो देखना नहीं चाहते हैं, तो अम, क्या मतलब है? तो कहाँ पे आई आपकी क्रिएटिविटी? ये सारी चीजें हैं, मैं समझती हूँ, और भी लीगली और भी लोगों की बातें होंगी, लेकिन ये बेसिक बातें हैं कि आपको आईना दिखाना होता है। क्यों फिल्में बनाते हैं, एक मुद्दा क्यों उठाते हैं? क्योंकि उसमें कुछ खामियां हैं, लोगों ने उस पे कुछ विचार करना चाहिए। तो लोगों को विचार करने से भी आप रोक देंगे क्या? आप पे वो लाके कि नहीं ऐसी ही बनानी है, ऐसी ही बनानी है, ये नहीं हो सकता है ना। तो मेरे ख्याल में शायद वो उसकी वजह से। और मैं और एक बात कहना चाहती हूँ। कुछ मध्य प्रदेश में एक फेस्टिवल चल रहा था, उसमें 25 साल पहले वाला, 25 क्या, उससे भी ज्यादा, विजय तेंदुलकर का एक नाटक, जात ही पूछो साधु की, ये मराठी में मेरे ख्याल में 500 बार खेला होगा। मराठी में उसका नाम था पाहिजे जातीचे, और हिंदी में भी खेला जा चुका था, जात ही पूछो साधु की, इस नाम से। अब वहां पे 2021 में ऑब्जेक्शन लिया गया कि ये जात है शब्द है, ये हमको नहीं चाहिए, और ये इसका मंचन बंद करो। अभी आपको याद आया 24-30 साल बाद में ये जात शब्द पे हजारों बार खेला हुआ प्ले मंचन करने नहीं दिया, बंद किया वो, ये काहे का है? सो रिकॉलिंग इज नॉट द, आई डोंट नो व्हाई दे आर रिकॉलिंग, ऐसे मुझे लगता है। आई मीन दीज आर माय व्यूज। Absolutely. And Rohini ji, I would love to speak to you for a very long time. बहुत कुछ मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ. But thank you very much for your time. And it is मैंने जैसे शुरू में कहा, it has truly been a privilege to talk to you. You've done a phenomenal work, and looking forward to all the future work, because I think the best चीज जो कि theater actors के लिए होती है कि that मुझे लगता है कि आपके अंदर भूख और बढ़ती जा रही है. And there are no conditions on theater actors कि वो जैसे actresses होती हैं कि glamour होता है, उसके बाद में उनको roles मिलने कम हो जाते हैं. I think आपका तो भी the world is an oyster for you. I feel that you're very hungry to do a lot many more wonderful roles. So all the best wishes. Thank you so much. Thank you, ma'am. Hello, this is Rohini Hattangadi, and you are watching Bollywood Hangama.